Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. So, I'm back with a new chapter. Chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. So, basically इस chapter में हम quadrilaterals के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. आप यहाँ पे देख सकते हैं, here is the creative illustration of a smooth plane curve drawn on a flat surface. So, you can see this picture. So, इससे आपको क्या idea मिल रहा है? This image illustrates the concept of a plane curve where multiple points are smoothly joined on a flat surface without lifting the pencil. The elegant flow of the curve symbolizes mathematical precision and the beauty of geometry in motion. So here you can see this picture. बच्चों ये किस पे बनी हुई है? ये एक प्लेन शीट पे बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड प्लेन कर्व, जो कर्व बनाया गया है विदाउट लिफ्टिंग आउट द पेंसिल. और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एलिगेंट फ्लो ऑफ कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को बेसिकली हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, जो हम सबसे पहले समझेंगे, द प्लेन सरफेस ऑफ पेपर सर्व्स एज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस. व्हेन यू कनेक्ट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम अ पेपर एंड विदाउट ट्रेसिंग any part of the drawing other than single points, you create a plane curve. So plane curve का तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल जब आप कोई कर्व बना रहे होते हो या कोई स्ट्रेट लाइन खींच रहे होते हो, और ये बेसिकली है क्या, ये आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से. सो एक आपको क्या मिलता है, आपको एक प्लेन सरफेस पे प्लेन मॉडल क्रिएट किया हुआ मिलता है. नाउ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स क्या होते हैं बच्चों? अ सिंपल कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन. बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स. सो बच्चों, पॉलीगन वो फिगर है जिसमें आप क्या करते हो, लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हो, एंड दैट लाइन सेगमेंट्स को यूज करके आप एक क्लोज्ड कर्व बनाते हो. रिमेंबर, क्लोज्ड कर्व होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन. द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स एंड second one is concave. So these figure are curves that are polygons. Here you can see these pictures, and here you can also see these three pictures. So basically the difference is that these are not closed. Are these closed? No, these are not closed, that's why they are not polygon, and these are closed, that is why it is called polygons. Okay, now here are some convex polygons and some concave polygons. Here you can see the picture, these are convex polygons, and here you can see concave polygons. These are some concave polygons. The major difference is that convex polygons have no portion of their diagonal outside the polygon. Okay, in other words, any segment joining any two different points inside the polygon lies entirely within the polygon. However, this is not true for concave polygons. So if you will see the difference बच्चों, concave में ये जो points है ये inside है, बट कॉन्वेक्स में ऐसे कोई भी जो लाइन सेगमेंट है वो इस तरीके से नहीं जॉइंट है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स. अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज वन वेयर ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री. दिस इज द मेजर डिफरेंस. जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं इन कॉन्वेक्स पॉलीगन, एंड नो डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगन, फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर. And in the case of concave polygon is one that has at least one interior angle that is greater than 180 degree, and at least one diagonal lies outside the polygon. So basically एक ऐसा एंगल, कम से कम एक ऐसा एंगल होगा जो कि ग्रेटर देन 180 होगा, और ऐसा कोई ना कोई एटलीस्ट वन डायगोनल होगा जो आउटसाइड द पॉलीगन लाई कर रहा होगा. फॉर एग्जांपल स्टार शेप्ड फिगर, हियर यू कैन सी दिस. Now let's see regular and irregular polygons. So a regular polygon is both equiangular and equilateral. For instance, a square has sides of equal length and angles of equal measure, making it a regular polygon. A rectangle, though equiangular, is not equilateral, so it is not a regular polygon. So here बच्चों, regular and irregular में पहले हम regular polygon को समझते हैं. वो क्लोज फिगर जिसमें सारी साइड्स भी बराबर हो, सारे एंगल्स भी बराबर हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. रेक्टेंगल क्यों रेगुलर पॉलीगन नहीं है? रीजन इज दैट क्योंकि वो इक्वेंगुलर नहीं है, उसमें इक्वेंगुलर है बट
इक्विलेटरल नहीं है, माय बैड, इक्विलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स बराबर नहीं होती। नाउ एग्जांपल देखिए बच्चों, इज अ रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाई और व्हाई नॉट? एज आई सेड, नो, रेक्टेंगुलर इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। व्हाई? बिकॉज अ रेगुलर पॉलीगन must have all sides and all angles equal. But in case of rectangle, although the opposite sides are equal, the adjacent sides are not. Thus, it does not meet the criteria for a regular polygon. This is the major difference. Now, is an equilateral triangle a regular polygon? Explain. Yes. Why? Because it is a regular polygon because all the three sides of an equilateral triangle are equal length, and its angles are equal. Basically the main thing is that equilateral triangle mein all the sides are equal and all the angles are equal. Each measuring is 60 degree, fulfilling the condition for a regular polygon. Now here you can see the exercise. Classify the following on the basis of the following. यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। इनको क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना है। आई होप आप कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि स्टार शेप्ड फिगर में क्या आएगा, अभी हमने देखा था, इसमें स्टार शेप्ड फिगर जो है वो कॉनकेव पॉलीगन में जाएगा। ऐसे ही कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या जा सकता है बच्चों, ट्राइंगल जा सकता है। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन? प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ईच। सो बच्चे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर पॉलीगन्स? सो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से शेप्स इनमें से पॉलीगन्स है, अ स्क्वायर, अ क्रिसेंट मून और अ हेक्सागन। Next, how many diagonals does a hexagon have? Classify the hexagon as a simple curve, polygon, concave, simple closed curve and convex polygon. Next देखिए, for each of the following state if it is a regular polygon or not and explain why. So बच्चों आपको यहाँ पे सबसे पहले रोम्बस बताना है कि क्या ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं। सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना है और पता करना है कि क्या सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं या नहीं। ऐसे ही रेक्टेंगल का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रेगुलर पेंटागन में एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इनमें से बेसिकली ये दो तो हम देख ही चुके हैं, रेगुलर पेंटागन और रोम्बस। मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि इनमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब सारी साइड्स बराबर है तो एंगल का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल बराबर होंगे या नहीं। ठीक है, सो दिस इज इनफ, आई थिंक काफी आइडिया दे दिया है। नाउ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द exterior angle of a polygon. So activity time, let's do a activity. Draw a polygon on the floor using chalk. Example, hexagon. Here you can see the picture A, B, C, D, E, F. Measure the total sum of the interior angles. How will you do this? सबसे पहले आपको क्या करना है, the first thing, use a piece of chalk to draw a polygon on the floor. For example, draw a hexagon labeled A, B, C, D, E, F. Here you can see the picture. We want to find the total sum of the exterior angle 1, then angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. Here you can see यहाँ पे mentioned भी है। ठीक है, ये सारे exterior angles है। Start at point A and walk along the side AB. आपको कहाँ से start करना है, A से start करना है and walk along AB. And after that, upon reaching point B, you need to turn true angle. आपको क्या करना है, जब आप B point पे पहुंच जाओ, you need to turn true angle 1 to continue walking along BC. Then आपको BC पे walk करना है। इसी तरीके से repeat this at each vertex, turning through angle 2 at C, angle 3 at D, angle 4 at E, and finally angle 5 back at A. Okay, now once you have returned to your starting point, you would have completed one full turn around the polygon. Therefore, the sum of the exterior angle of hexagon, here you can see, sum of the exterior angle of the hexagon will be 360 degree. The sum of the exterior angle will always be equals to 360 degree. Why? Because you have completed a one round of this hexagon. Okay, so this is what we are trying to understand कि आपने क्या किया, आपने एक पूरा कंप्लीट टर्न कर लिया है। So basically आपने 360 डिग्री पूरा
आप घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ गए हो। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी अ क्वाड्रिलेटरल हैज एक्सटर्नल एंगल 90 डिग्री, 2 85 डिग्री, 3 95 डिग्री, 4 90 डिग्री। वेरीफाई द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सो बेसिकली फॉर एनी पॉलीगन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, किसी भी पॉलीगन के लिए। तो जब इन चारों एंगल्स को ऐड करोगे, आप इन्हें ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐड करने पे कितना मिल रहा है, 360 डिग्री। सो द टोटल सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। नाउ एग्जांपल 1, कंसीडर अ पेंटागन विद 5 एक्सटर्नल एंगल्स। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, 5 एंगल्स होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। इनकी मेजरमेंट भी दी हुई है। आपको क्या करना है, टोटल सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो जब आप इन सबको ऐड ऑन करोगे, so you will see 70 60 130 130 plus 80 210 and then जब आप इनमें 150 ऐड करोगे, 75 75 150, you will get 360 degree. Okay, now therefore the sum of exterior angle is 360 degree, which matches the expected result of any polygon. Now let's see example number 2. For a hexagon the exterior angles are given angle 1 2 3 4 5 and 6. All the six angles are given. हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, 6 एंगल्स होते हैं। सो आपको 6 एंगल्स दिए हुए हैं, आपको वेरीफाई करना है सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सो यू विल ऐड ऑल द गिवन एंगल्स एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, आपने वैल्यू पुट कर दी, अब उसे जब आप ऐड करो यू विल गेट 360 डिग्री। देयरफॉर द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 degree. Now let's see example 3. Find the value of x in the given figure. You can see that आपको एंगल A फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल A, और B C D आपको गिवन है, और आपको पता है किसी भी पॉलीगन के लिए we know the sum of exterior angle will always be 360. So x plus 95 plus 40 plus 105 equals to 360 डिग्री। नाउ इन सबको ऐड कीजिए, यू विल गेट 240 डिग्री। 240 डिग्री इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा एंड द आंसर इज 120 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ साइड्स, oh my bad, find the number of sides of a regular polygon if each exterior angle measures 40 degree. सॉरी, तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है बच्चों, आपको ये बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री मेजर है हर एंगल का। अब उसमें बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। सो बेसिकली आपको पता है टोटल मेजर 360 डिग्री होगा। जो ईच मेजर है, ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 40 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल sum of exterior angle divided by measure of each exterior angle. When you will divide, you will get 9. So basically polygon में कितनी sides है, 9 sides है। Okay, now let's see exercise. यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, find the value of x. So you can easily do it, right? कैसे? आपको पता है किसी भी polygon में जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट इट, राइट? ऐसे ही बच्चों इस पे भी आपको करना है। आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है, आप इसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हियर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 12 साइड्स एंड 20 साइड्स। सबसे बोला क्या है, आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको ये पता है कि किसी पॉलीगन में 12 साइड्स है, अगर किसी पॉलीगन में 12 साइड्स है और आपको मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि जो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम है दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे बोला क्या है, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है एक रेगुलर पॉलीगन का जिसमें 12 साइड्स आपको दी गई है। सो हाउ विल यू डू दिस? आपको ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक है, और जब आप उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हो, ठीक है, सो आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता चल जाता है, ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी 30 डिग्री, है ना? ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल।
अब आप कहोगे हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था। सो बेसिकली आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस पिक्चर के रेफरेंस से, इस फिगर के रेफरेंस से बताऊं, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है और आपको ये पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना बनाता है बच्चों? 180 डिग्री। लीनियर पेयर आपने पढ़ा हुआ है। एक्सटीरियर एंगल कितना निकला हमारा? 30 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है, मैं से आई ए के नाम से दिखा रही हूँ, ठीक है। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और जो आपका इंटीरियर एंगल आएगा 30 माइनस करने के बाद दैट इज 150 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से आपको इसे करना है। सेम बच्चों इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे भी आंसर 162 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 140 डिग्री। अब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड्स। हमने इसके बेसिस पे भी एग्जांपल भी देखा था। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चंस आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स सी exploring essential ideas kind of quadrilaterals. So quadrilaterals can be categorized based on their sides or angles, like trapezium. A trapezium is a quadrilateral with one pair of parallel sides. Here you can see, मैं parallel sides पे आपको highlight करके बताती हूँ. These lines are parallel sides. Now one pair, only one pair of parallel sides. Same here, यहाँ पे भी ये parallel है. Same यहाँ पे ये वाली लाइंस पैरेलल है एंड इन दिस केस दिस इज पैरेलल. सो एटलीस्ट वन पेयर जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए क्या बोला है, एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर्स टू डिटरमाइन व्हिच वन आर ट्रेपेजियम. सो आप ये कर सकते हो. आपको पता है जैसे कि ये ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है. व्हाई? बिकॉज ओके माय बैड, आपको पता है कि ट्रेपेजियम जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो उसमें 4 साइड्स होंगी बट यहाँ पे 5 साइड्स दे रखी है. सो दिस इज नॉट ट्रेपेजियम. ओके, नाउ इन दिस केस नॉट ट्रेपेजियम. व्हाई? बिकॉज पैरेलल तो है ही नहीं कोई लाइन. ओके, काइट. A kite is a quadrilateral where two distinct pair of consecutive sides are of equal length. These are kites. Here you can see consecutive sides are of equal length. और यहाँ पे भी ये consecutive sides कैसी हैं? Equal length. So these are called kites. Next, these are not kites. Why? Because you can see it is having 5 sides. Also यहाँ पे opposite side equal है, यहाँ पे सारी side equal है. So these are not kites. Activity: create a kite using paper folding technique. Fold the sheets of a paper and draw 2 line segments of different lengths. Cut along the lines and unfold to form a kite. Examine the kite for line symmetry and diagonal properties. So बच्चे ये आपको खुद से करना है एंड प्रॉपर्टीज क्या आएंगी उससे कि काइट में 4 साइड्स होती हैं और exactly 2 distinct consecutive pairs of equal length sides, जो हमने ऊपर भी देखा. Now let's see the next one, parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral with opposite sides parallel. So यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं. नाउ दीज आर पैरेललोग्राम्स. हियर यू कैन सी दीज ऑल आर कंटेनिंग 4 साइड्स एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दीज आर नॉट पैरेललोग्राम. व्हाई? बिकॉज here you can see, first of all, opposite sides are not parallel and also not having 4 sides. This one is not parallelogram. This one is also not parallelogram. Here we are having 4 sides, but this one is not parallel to this one. So that is why this is also not a parallelogram. Now you can see elements of a parallelogram. There are 4 sides and 4 angles in a parallelogram. Some of these are equal. There are some terms associated with these elements that we need to remember. The first in a parallelogram ABCD, here you can see the picture. Opposite sides AB and DC, AD and BC. Okay, you can see opposite angle, angle A के opposite है C, B के है D. Adjacent sides AB, BC, BC, CD, DC. DC or CD, they both are same, is equal to DA, that is adjacent sides, and AD, AB. Okay, these are pair of adjacent sides. Adjacent angles क्या होगा? A के साथ है B, B के साथ है C, C के साथ है D and D के साथ है A. So these are adjacent angles. Now you can see the properties. The opposite sides of a parallelogram are of equal length.
Okay, so this is the property of parallelogram. Find the perimeter of the parallelogram KLMN. So आपको पता है कि in a parallelogram opposite sides have the same length. So अगर ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, और ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा. Now when you will add all the sides of a parallelogram, 15 plus 8 plus 15 plus 8, you will get 46 centimeter is the perimeter of the given parallelogram. क्या नाम है, KLMN. Okay, now let's move forward and see angles of a parallelogram. We have already explored the properties of the side of parallelogram. Now let's investigate the angles. So let PQRS be a parallelogram. Draw these parallelogram on a sheet of paper. Now trace it on a transparent sheet and label this copy P complement, Q complement, R complement, S complement. Place the transparent copy directly over the original parallelogram so that both coincide exactly. So now pin them together at the point where these diagonal intersect. Now rotate the transparent sheet by 180 degree. You will notice that कि जो P है वो लाई कर रहा है किस पे, exactly R पे, and ऐसे ही vice versa हो रहा है, और Q लाई कर रहा है S पे and vice versa. So बच्चों आप इस practical को करके देख सकते हैं. And what does this tell us about the measure of the angles P and R? Similarly compare angles Q and S. You will discover something important about the angles of a parallelogram. प्रॉपर्टी कौन सी आएगी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, नाउ एक्टिविटी देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, verifying the angles using property folding. So draw any parallelogram on a piece of paper. Again आपको वही करना है, but इस टाइम आपको लेबलिंग करनी है vertices पे. PQRS, cut out the parallelogram and fold it along one diagonal. You can see that here, and you will notice that angle P perfectly overlaps with angle R, confirming that they are equal. Repeat this process for diagonal QS to confirm that angle Q is equals to S. ओके, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, आर एस बराबर है क्यू के, पी बराबर है आर के. नाउ कंफर्मिंग द प्रॉपर्टी विद सेट स्क्वायर्स. सो टेक टू आइडेंटिकल 45 45 90 सेट स्क्वायर्स and align them to form a parallelogram. Do you see that opposite angles are equal? The equal angles formed confirm the property of parallelogram angles. So बच्चों आपने सेट स्क्वायर देखा होगा जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, 45 45 90 वाला. अगर आप ऐसे ही दो सेट स्क्वायर्स को लेके जोड़ दोगे then you will find this property. Justification देखिए बच्चों, PQ and RS are the diagonals of a parallelogram. You can use the following. When diagonals intersect, they form vertically opposite angle which are basically equal. So for example, angle 1 will be equal to angle 3 and angle 2 will be equal to angle 4. ओके, सो यहाँ पे यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल. आप इससे आगे आने वाले चैप्टर में और भी डीप डाइव करके पढ़ोगे. दिस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हेल्प्स रीइंफोर्स दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2. In the given figure ABCD parallelogram, find the value x, y and z. So basically बच्चों आपको पता है कि एंगल A given है, आपको x, y और z फाइंड आउट करना है. So कैसे करेंगे? एंगल A is opposite to angle C, you can see, और एंगल C जो है वो x के बराबर है, तो वो कितना हो जाएगा 105 डिग्री. रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. नेक्स्ट बच्चों देखिए, एंगल ए बराबर है y के. रीजन बिकॉज यहाँ पे देखिए एंगल ए बराबर है y के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है. नाउ एंगल y भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री. नाउ एज यू ऑलरेडी नो कि अगर एंगल y आपका 105 डिग्री है, सो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. लीनियर पेयर, y की वैल्यू 105 पता है, z की निकल जाएगी जो कि 75 डिग्री आएगी. तो इसी तरीके से आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. नेक्स्ट देखिए, इन अ पैरेललोग्राम LMNO एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स. सो एज यू नो बच्चों, अगर एंगल L 70 है तो एंगल N भी 70 होगा. रीजन बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट. यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बिकॉज एंगल N एंड एंगल L and angle N are opposite angles of a parallelogram. अब आपको पता है कि since angle L and M are supplementary, you can see that here बच्चों, angle L and angle M are supplementary. So when you will add both of them, so you will get 180 degree. तो अगर आपको angle M find out करना है तो आप क्या करेंगे, 180 एंगल M में से एंगल को 180 डिग्री में से एंगल L को घटा दीजिए.
जो कि कितना है 70 डिग्री, एंड यू विल गेट 110 डिग्री जो कि एंगल एम है। एंगल एम की वैल्यू कितनी आई बच्चों 110 डिग्री, जो कि आप देख सकते हो। अगर इसकी 110 डिग्री निकली है सो एंगल ओ भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। रीजन बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। So let's see activity बच्चों, exploring the diagonals of a parallelogram. In general, the diagonals of a parallelogram are not equal in length. जो बच्चों diagonals होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल नहीं होते। Now however they do share an intersecting property. अब बच्चों intersecting property के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। Like I'll draw, यहाँ पे मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो डायगोनल्स हैं दे बोथ आर नॉट इक्वल, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। डायगोनल 1 इक्वल नहीं होता डायगोनल 2 के, बट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टेक अ कट आउट ऑफ अ पैरेललोग्राम लेबल्ड ABCD, द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पॉइंट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। फॉर द पैरेललोग्राम अलोंग द डायगोनल AC, आपको AC के अलोंग क्या करना है, फोल्ड करना है। बाय ब्रिंगिंग पॉइंट C onto point A, does the fold press through point O, indicating that O is the midpoint of AC. तो आप नोटिस करेंगे, now check if diagonal BD also bisects diagonal AC at point O. Discuss your observation with your classmate. Try repeating this for diagonal BD to find its midpoint. Now property आप जो इससे find out करेंगे, the diagonals of a parallelogram bisect each other. Although they both are not equal, but they bisect each other. That means this is equal to this one and this is equal to this one. Now this property can be justified using geometric reason. Looking at the figure, you can apply the ASA angle side angle property criterion to the triangles found by the diagonals. Now since triangle AOB is congruent to triangle COD, we can conclude that जो OA है वो इक्वल है OC के एंड BO जो है वो इक्वल है OD के। सो आपने कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, उस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को यूज करके आप AOB और COD, देखिए AOB एंड COD में क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो बच्चों कि हम ASA की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हाउ, आपको पता है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और दोनों में कॉमन साइड ये भी आपस में बराबर है। सो ASA की प्रॉपर्टी यूज होकर आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों साइड्स को जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं वो भी प्रूफ हो सकता है। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये कंफर्म होता है बाय प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 4 इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन दैट OB कितना है बच्चों, OB है 4 सेंटीमीटर एंड AC जो है यहाँ पे देखिए पूरा AC दैट इज 5 मीटर मोर देन BD, 5 मीटर मोर देन BD, फाइंड OA। सो आपको ये पता है कि बच्चों आपको जो AC का लेंथ है वो 5 मोर देन है BD के, तो BD भी तो पता होना चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो कि OB के लेंथ 4 मीटर है, सो BD का निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर OB 4 सेंटीमीटर दिया है तो OD भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर एंड BD कितना हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ एज यू ऑलरेडी नो कि जो AC है दैट इज 5 मोर देन BD, सो दैट विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन में मीटर गिवन है, so just cut out the C. Okay, now meter. Now let's see, hence OA is equal to half of AC, so that will be equals to 6.5 meter. Clear? Now let's move forward. Now let's see the another example. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:5:6. 4 angles होते हैं and find its angle. So we will let the 4 angle 3x, 4x, 5x and 6x, और हमें पता है जो इनका सम होगा that will be equals to 360 degree. When you will add, you will get 18x is equal to 360 degree, x is equal to 20 degree. और बच्चों अब क्या कर सकते हो आप 3x, 4x, 5x and 6x जो है उसमें x की वैल्यू पुट करके चारों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 6। 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल्स होते हैं, 3 इक्वल हैं। 4th एंगल इज 150। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। सो हाउ विल यू डू दैट, आप उसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ईच इक्वल एंगल विल बी x डिग्री। 4th आपको पता है तो 3 बार x एड ऑन होगा
x प्लस x प्लस x प्लस 150 इज इक्वल टू 360। चारों एंगल ऐड हो गए। अब ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 150, 150 दूसरी साइड जाएगा 210 बचेगा एंड 3 इसके डिवाइड में जाएगा, सो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। क्लियर। सो इसी तरीके से आपको बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हियर यू कैन सी कैन क्वाड्रिलेटरल, अब एक्सरसाइज में कैन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बी अ पैरेललोग्राम इफ P प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये बताया गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है बच्चों, P Q R S। अब पूछा गया है कैन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो सकता है, रीजन वाई, बिकॉज हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, राइट। सो एंगल P प्लस, ओ माय बैड, दैट इज, बच्चों मैंने इसे गलत कर दिया, ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। पी क्यू आर एस दिया है और एंगल P प्लस R का सम 180 दिया है। आई टू एंगल P प्लस एंगल Q, सो एंगल P प्लस एंगल R का सम कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है। सो आपको पता है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकते हैं। सो बच्चों ये आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा। हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। सो इन सम केस पैरेललोग्राम कब हो सकता है, जब अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल बराबर कब हो सकते हैं, 90 90। अगर ये 90 डिग्री हो जाता है और एंगल 2 भी कितना हो जाता है, 90 डिग्री। सेम बच्चों ये भी फिर 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। सो इन दैट केस हम कह सकते हैं तब ये पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि अपोजिट एंगल तब इक्वल हो जाएगा इफ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री नहीं है सो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब बच्चे देखिए वही कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट एंगल्स, ओके। सो एडजेसेंट एंगल्स इसे आप 5x मानोगे, इसे आप 4x मानोगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपके जो x की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 20 डिग्री, राइट। सो 5x कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, 100 डिग्री एंड 4x कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। सो इसी तरीके से बाकी के दो एंगल्स भी निकल जाएंगे, वो भी 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको खुद से करना है बच्चों। यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। द सेम क्वेश्चन बच्चों दैट वी जस्ट डिड, एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम का रेशियो दे रखा है, आपको सारे एंगल्स के फाइंड आउट करने हैं। सो आई होप आप इन क्वेश्चन को करेंगे। सेम बच्चों इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी आपको फाइंड आउट करना है। एक्स मानेंगे चारों को जोड़ के 360 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ देखिए 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल रेशियो में दिया है। सो आप कैसे करेंगे इसे, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स। इसे भी आप x मान सकते हो बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया था, और फिगर आपको दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने एग्जांपल में देखा था। सो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द अनदर टॉपिक, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। So in this section we will learn certain types, special types of parallelogram, rhombus, rectangle and square. Each of these shapes is a type of parallelogram with its own unique properties. First one is rhombus. A rhombus is a type of quadrilateral where all four sides have the same length, and this shape is also a parallelogram because opposite sides are equal and parallel. One important property of a rhombus is that its diagonal are perpendicular bisects of each other. So यहाँ पे देखिए बच्चों, जो सबसे ज्यादा important property है वो क्या है कि इसके जो diagonals होते हैं वो perpendicular bisect करते हैं एक दूसरे को। बाकी property same है, and one thing is very important, all the four sides have the same length in case of rhombus. Okay, now let's see property. The diagonal of a rhombus are perpendicular bisector of one another. Consider rhombus ABCD. Here you can see with diagonal AC and BD intersecting at point O. Since ABCD is a rhombus, diagonal bisect each other. OA is equal to OC. OA किसके बराबर हो जाएगा, OC के। OD किसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर हो जाएगा। By SSS कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी क्राइटेरियन, ट्राइंगल AOD किसके कॉन्ग्रेंट होगा बच्चों, COD के।
राइट क्योंकि ये अपोजिट साइड भी तो इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और साथ ही बच्चों आपको पता चल जाएगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। नाउ सिंस दे बोथ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, आपको पता है कि एंगल क्या करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रफ करती हूँ, ये देखिए एंगल AOD एंड एंगल COD ये क्या करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। अब बच्चों आपको पता है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, राइट अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल है दैट मींस ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ओके नाउ दिस प्रूव्स दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल गिवन रोम्बस राइज फाइंड x, y एंड z वेयर x जो है वो OE के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OE है वो किसके बराबर है, x के, एंड y जो है वो OR के बराबर है, ये y है। देन z जो है वो साइड ऑफ रोम्बस है, z क्या है बच्चों, साइड ऑफ रोम्बस। इफ OE इज इक्वल टू 5, OR इज इक्वल टू 12, यू कैन सी यहाँ पे गिवन है OR कितना है, 12 है। सो द साइड ऑफ द रोम्बस इज 13 यूनिट्स। वी कैन वेरीफाई बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ, आपने बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम की, सो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। सो एज यू ऑलरेडी नो बच्चों ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये 12 ये 5, सो बेसिकली बेस 12 है, हाइट जो है वो 5 है, तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये करना है, कैसे करेंगे ये देखिए, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट विल बी इक्वल्स टू 13, दिस विल बी 13। ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ OE इज इक्वल टू OC हमें पता ही है, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, x इज इक्वल टू 5 और OR किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू 12। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एज यू ऑलरेडी नो z क्या है, साइड ऑफ द रोम्बस जो हमने फाइंड आउट करा है दैट इज 13। Okay, now let's see the rectangle बच्चों। A rectangle is a parallelogram where all angles are right angle that is equals to 90 degree. In addition to have opposite sides equal and parallel, a rectangle has diagonal of equal length. साथ ही बच्चों इनकी जो diagonals होती है उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। प्रॉपर्टी diagonals of a rectangle are of equal length. Consider rectangle ABCD with diagonals AC and BD intersecting at O. यहाँ पे आप बच्चों क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल देख सकते हैं जिसका नाम है ABCD, एंड बच्चों इसमें आप देख सकते हैं डायगोनल AC एंड BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नाउ बच्चों ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC एंड ABD दिस वन, एंड दूसरा बच्चों में दूसरे कलर से शेड कर रही हूँ, ट्राइंगल ABD हमने कर लिया, ट्राइंगल ABC, ओके दिस वन। सो बच्चों इसमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें AB दोनों में कॉमन है, AB कॉमन है, ठीक है। उसके बाद BC किसके बराबर है, AD के, रीजन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और एंगल B जो है वो बराबर है 90 के। तो ये क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है, एंड AC इज इक्वल टू BD प्रूविंग दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। नाउ एग्जांपल देखिए बच्चों, इस एग्जांपल में आपके पास एक रेक्टेंगल है, माय बैड, RENT एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आपको OR की लेंथ दे रखी है जो कि है 2x + 4, और साथ ही बच्चों OT की लेंथ दे रखी है आपको 3x + 1। ओके अब बच्चों बोला क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एज यू ऑलरेडी नो बच्चों कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में, सो देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, राइट। सो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 2x + 4 इज इक्वल टू 3x + 1। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसे जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2x - 3 एंड 1 - 4, सो यू विल गेट ये 3x। ओके सो -x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, सो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आई 3। क्लियर हुआ। नाउ लेट्स सी बच्चों स्क्वायर। सो अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, व्हाई, बिकॉज इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, all sides are equal like a rhombus and all angles are equal, and also a right angle like a rectangle, diagonals are equal and bisect each other and are perpendicular। so ये कुछ प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल स्क्वायर की, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, रोम्बस की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। कंसीडर
स्क्वायर ABCD विद डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट O। और बच्चों अगर आप नोटिस करेंगे तो ABCD एक स्क्वायर है, सो वी कैन ऑल्सो से इट एज पैरेललोग्राम, जहां पर OA जो है वो बराबर है OC के। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOD एंड COD। यहाँ पे आप देखिए AOD एंड दूसरा है आपका COD, वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर जब ये बना रहे हैं तो ये दोनों जब हमने सॉल्व करेंगे, एज यू ऑलरेडी नो, दोनों एंगल बराबर है x, माय बैड, ये देखिए हमने ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, हमने माना। अब हमें पता है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो बेसिकली ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। सिंस दीज एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, ईच विल बी 90 degree as I told you. Now therefore the diagonal of a square are perpendicular bisect of each other. Now बच्चों यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज को दोबारा रिवाइज करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देना कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। बिल्कुल, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता बट स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, सो दिस इज ट्रू। ओके, सो ऐसे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट बच्चों, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ। सो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड इक्वल लेंथ, तो पहला है स्क्वायर, दूसरा कौन सा हो सकता है बच्चों, दूसरा हो सकता है रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, यू कैन गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो दैट इज रोम्बस। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, अभी जस्ट हमने पढ़ा स्क्वायर। आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, अब आपको ये क्वेश्चन आंसर देना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, हमने पढ़ा था, क्योंकि स्क्वायर स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, राइट। और पैरेललोग्राम क्यों है, इसका भी आंसर दे सकते हो, हमने जस्ट पढ़ा था अभी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे कुछ समरी दी है, क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी समरी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। एंड रेक्टेंगल में ऑल properties of a parallelogram, each angle is 90 degree and diagonals are equal in length. स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, एंड देन डायगोनल्स आर इक्वल एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। काइट में बच्चों डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप समरी इसकी रिवाइज कर सकते हो। देन आप आगे देखिए, आगे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू कैन ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन आल्सो सी MCQs आर गिवन, सो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई आउट करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।